बीरेन्द्र सर प्रणाम सर। वीरेंद्र बाबू को प्रणाम मेरी तरफ से भी। मैं गोरेलाल यादव बोल रहा हूँ। वीरेंद्र बाबू, धीरेश जी, धीरेश जी, कैन यू लिसन मी? हाँ सर, मैं सुन पा रहा हूँ आपको। हाँ हाँ, ओके। धीरेश जी, हम लोग स्टार्ट करते हैं। दीपक जी को मैं मैसेज कर रहा हूँ ज्वाइन के लिए। धीरेश जी स्टार्ट करिए। मेरी आवाज आ रही है? जी जी धीरेश जी। हाँ। अ, मैं धीरेश तिवारी, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय से आप सभी अतिथियों और अपने शोधार्थी मित्रों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आप सभी को मेरा सादर नमस्कार। आज हम भूपेन्द्र नारायण मंडल जी की पुण्यतिथि के अवसर पर ये कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं, जिसमें हमारे मुख्य अतिथि और विशिष्ट अतिथि और अध्यक्ष महोदय जी ने आकर हमारे कार्यक्रम को ज्यादा महत्वपूर्ण और गरिमापूर्ण बनाने में हमारा सहयोग किया है और इन्होंने अपना बहुमूल्य समय देकर हमारे कार्यक्रम से जुड़ने की कृपा की। उसके लिए मैं इनका हार्दिक धन्यवाद करता हूं और आभारी हूं। मैं अपने संयोजक महोदय विकास जी से ये आग्रह करना चाहता हूं कि वो कुछ बताएं, फिर हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। Okay, so thank you Dhiresh ji. You all can listen me well. So first of all, I would like to welcome who is not necessary and who is not need to need any intro, Dr. Gorelal Yadav sir.
who is जी a नमस्कार नमस्कार IS जी। IS selected IS officer in 1984 batch, and he is also former secretary of Bihar government. So I would like to welcome sir, your welcome sir, on the core, in the core of my heart and in depth of my heart, on the behalf of me and on the behalf of Indian Research Scholars Association. I would like मेरी तरफ to से भी नमस्कार welcome. गणेश जी, और आपके सभी सहयोगी के लिए भी मेरा नमस्कार, और जो आज पार्टिसिपेंट्स हैं उनको भी नमस्कार। I would like to welcome uh, our favorite speaker who has always given the guidance not only for our associations but all the research scholars who are working on the Hindi, and who is always struggle about this, that what is the directions of the Hindi Research Scholars Association and how can do very good research in Hindi, and in Hindi Research Scholars Associations, Dr. Virendra Kumar Yadav sir, who is a member of Hindi Committee, Government of India. I would like to welcome Deepak Prasad ji, who is a president of this lecture and this webinar. And I would like to welcome all executive committee member of the India Research Scholars Association, and anchor of this webinar, Dhiresh Kumar ji, Dhiresh Pandey ji, and Abhishek Kumar ji, Ganeshi Lal ji, and I would like to welcome all participants and all that members who have joined this lecture series. I can see on the screen the number of participant is very little, but हिंदी में एक कहावत है कि ज्ञान की साधना करना सबके बस की बात नहीं होती है. So I would like to welcome again on the behalf of Indian Research Scholars Association and on the behalf of me. And sir, I want to say something about this association due to your permission, Gorelal sir. सर सर Sir, Indian Research Scholars Association is an association who has given the platform of that research scholar who are doing the creative research in social science subjects and humanities, and its association have always provided the stage and provided the guidance to every scholars who want to need the good research, and its association has not provide only the guidance and only the platform. It will be also provide the many types of research scholars, many types of the literature and magazine and research papers who is need for the research scholars. So, sir, this is the little introduction of the this association. So, due to your permission, so I want to invite the again Dhiresh Tiwari ji. Please proceed the further proceeding. Thank you, Dhiresh ji. थैंक यू विकास जी। हेलो। हाँ जी धीरेज जी, आवाज आ रही है? आप सर को आमंत्रित करें।
इंडियन रिसर्च स्कॉलर्स एसोसिएशन के सभी सदस्यों का एक बार मैं फिर से स्वागत करता हूं। कल विकास जी ने मुझे बताया इस एसोसिएशन के बारे में, और बहुत अच्छी पहल है ये, और ऐसे कार्यक्रम जिनसे हमें बहुत कुछ सीखने को, समझने को मिलता रहता है। हम आप जैसे वक्ताओं के वक्तव्यों से लाभान्वित होते रहते हैं। आज हम भूपेंद्र नारायण मंडल जी की पुण्यतिथि मना रहे हैं, जो एक ऐसे समाजवादी आंदोलन के नेता थे जो अपने बलबूते से जमीन से उठकर राजनीति के शिखर तक पहुंचे। दलितों, पिछड़ों के लिए जो उन्होंने किया, और समाजवाद का जो असली रूप था, लोहिया और जयप्रकाश नारायण जैसे चिंतकों के साथ मिलकर उन्होंने समाजवाद को एक नया रूप दिया, समाजवाद को खड़ा किया। फिर से भेजी है। तो ऐसे व्यक्तित्व के बारे में, ऐसे व्यक्ति के विचारों की प्रासंगिकता सदैव रहेगी। और आज उन्हीं के विचारों की प्रासंगिकता के संदर्भ में ये कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है इंडियन रिसर्च स्कॉलर्स एसोसिएशन के द्वारा। समाजवाद का एक वो रूप जो लोहिया, जयप्रकाश नारायण और बीएन मंडल जैसे लोगों के समय था, और आज समाजवाद का क्या रूप है, इस फर्क को हम देख सकते हैं। तो इन समाजवाद के प्रमुख जो स्तंभ रहे, इनके विचारों की प्रासंगिकता सदैव रहेगी, न केवल वर्तमान संदर्भ में बल्कि भविष्य में भी। तो इसी संदर्भ में, ये तो मैंने थोड़ा सा परिचय दिया, मैं अपने मुख्य अतिथि जी से आग्रह करना चाहता हूं, डॉक्टर गोरेलाल यादव जी से, जो आईएएस रहे और पूर्व ग्रामीण विकास सचिव बिहार सरकार में रहे। मैं उनसे अनुरोध करता हूं कि वो बीएन मंडल के विचारों की प्रासंगिकता के संदर्भ में अपने विचार प्रस्तुत करें, और हम शोधार्थी छात्रों को अपने वक्तव्य से लाभान्वित करें। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने ये मौका मुझे दिया है। मैं सबसे पहले कहना चाहूंगा कि चूंकि महान समाजवादी महामानव भूपेंद्र नारायण मंडल जी की पुण्यतिथि है, तो ऐसे समय में यह कहना बहुत आवश्यक है कि लोहिया जी के, राम मनोहर लोहिया जी के और जयप्रकाश नारायण जी के बहुत ही करीबी थे, और चूंकि वो बिहार के थे तो मुझे भी उन्हें बचपन में जानने सुनने का मौका मिला था। और यह कहते हुए खुशी हो रही है कि वो गरीब परिवार से नहीं थे, बहुत ही धनी परिवार से थे, खुशहाल परिवार से थे, और खुशहाल परिवार से आते हुए भी वो खांटी समाजवादी थे। रहन सहन में काफी सिंपल थे, वेशभूषा में सिंपल थे, लेकिन विचार उनके बहुत उच्च थे और समाजवादी थे। कभी कभी लोग सोचते हैं कि समाजवादी वही लोग होते हैं जो कि गरीब होते हैं, जो वंचित वर्ग से आते हैं, लेकिन इसके ठीक विपरीत श्री भूपेंद्र नारायण मंडल समाज में बहुत ही प्रतिष्ठित धनी व्यक्ति थे। परिवार बहुत धनी था, और उस परिवार के रहते हुए भी उनके विचार समाजवादी थे। प्रासंगिकता की जहां तक कितना प्रासंगिक है उनका विचार उस समय का, मैं अभी केवल टच करना चाहता हूं और बाद में इलेबोरेट करूं, उसको विस्तार से बताना चाहूंगा। अगर आप सुनना चाहेंगे या उतना समय रहेगा तो
मैं यह कहना चाहूंगा कि उनका विचार जिस समय वो जीवित थे जितना प्रासंगिक था उससे अधिक प्रासंगिक अभी हो गया है। और अभाग्यवश अनफॉर्चुनेटली ऐसे समय में जबकि उनके विचार अधिक प्रासंगिक हैं तो वो नहीं है और उनके विचार भी लुप्त होते जा रहे हैं। लुप्त होते मन का मतलब ये है कि हमारे जैसे आपके जैसे लोगों के मन में वो विचार हैं, अपनी अभिव्यक्ति देते हैं, उसको बोलते हैं, प्रचार प्रसार करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उन विचारों का इम्प्लीमेंटेशन कार्यान्वयन बिल्कुल नहीं हो रहा है। तो इस संदर्भ में मैं कहना चाहूंगा कि जो हम लोगों का संविधान बना देश की आजादी के बाद, तो उसके प्रियम्बुल में बाद में जो जोड़ा गया और जो पहले से था और अभी जो मिला करके जो जोड़ा गया और पहले का, तो उसके हिसाब से उसके संविधान के अनुसार ही देश चलता है, संविधान के अनुसार ही सब कुछ चल रहा है, पूरी व्यवस्था चल रही है। और उस संविधान के प्रियम्बुल में ही कहा गया कि वी द पीपुल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic and secure to all citizens। उसके बाद है जस्टिस। जस्टिस क्या है? जस्टिस सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, इक्वलिटी ऑफ स्टेटस, अपॉर्चुनिटी। तो मैं आज केवल इन्हीं दो बिंदु पर कि संविधान के प्रस्तावना में प्रियम्बुल में क्या कहा गया और क्या प्रियम्बुल में जो कहा गया हम लोग कर पा रहे हैं। अगर नहीं कर पा रहे हैं तो प्रियम्बुल में उसको रखने की क्या जरूरत है। मोबाइल से और प्रियम्बुल में जो कहा गया दूसरे मोबाइल से जोड़कर वो कीजिए, दूसरे मोबाइल से भूपेंद्र नारायण मंडल जी की विचारधारा के अनुसार ही वो प्रियम्बुल में कहा गया। दूसरे का मोबाइल लीजिए सर। तो ये एक विचारणीय बिंदु आज का रहेगा हम लोगों के बीच में। हाँ, मैं कि क्या रियली अभी भी इंडिया सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है या अब नहीं है। और क्या इक्वल अपॉर्चुनिटी और जस्टिस सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल सब मिल रहा है कि हमें मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। और या मिल रहा है तो कितना मिल रहा है, कितना बाकी है और कितना काम हमें और आगे करना है, क्या क्या करना होगा, कर सकेंगे नहीं कर सकेंगे। तो इन बिंदु को टच करते हुए मैं आगे बढ़ना चाहूंगा कि जहां तक है समाजवाद, तो समाजवाद का मतलब हुआ कि गरीबी अमीरी के बीच की खाई पटे। गरीबी अमीरी के बीच की जो खाई है वह बहुत अधिक पहले ही थी। 1989 तक इंडिया में गरीबी और अमीरी की खाई थोड़ी थोड़ी पटती जा रही थी, माने नैरो होते जा रहा था। इनइक्वालिटी, इनकम इनइक्वालिटी धीरे धीरे घटती जा रही थी, हालांकि तेजी से नहीं घट रही थी लेकिन घटती जा रही थी। 1989 के बाद 1989 के बाद जो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी हम लोगों ने अडॉप्ट किया, नरसिम्हा राव साहब ने इसकी शुरुआत की और मनमोहन सिंह जी के प्रधानमंत्रित्व काल में, उनके प्राइम मिनिस्टरशिप में वो और अधिक आगे बढ़ा। उसके कारण सभी, ऐसा नहीं कि मेरा विचार है, जितने भी इकोनॉमिस्ट हैं, जितने भी रिसर्चर्स हैं आपके जैसे, जितने भी सजग पाठक हैं या लिखने वाले हैं, वो सब लोग कहेंगे या फिगर्स शो कर रहा है। एनएसएस के जो फिगर्स हैं, नेशनल स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट के सैंपल सर्वे के जो फिगर्स हैं, इनके फिगर्स को भी देखेंगे, वो सब के सब फिगर्स एक ही चीज इंडिकेट कर रहे हैं कि इंडिया में इनकम इक्वलिटी, इनकम इनइक्वालिटी बढ़ती जा रही है। और जो पहले का जो एक ट्रेंड था, इनइक्वालिटी घटती जा रही है, वो घट करके नहीं, वो बढ़ने लगी है, तेजी से बढ़ती जा रही है। उसको ज्वाइन नहीं कर रहे हैं। और स्थिति अभी ऐसी आ गई है अपने देश में
कि 1% लोगों के पास इतनी अधिक संपत्ति है सेक्रेटरी को बुलाया गया है, कि नीचे के तबके का, कि जो मैं एनएसएस के फिगर्स को ही कोट करूंगा कि उनके अनुसार, और ऑक्सफैम के फिगर्स को भी कोट करूंगा कि इनकम इनइक्वालिटी इंडिया में कितनी तेजी से बढ़ रही है। अब देखिए, भूपेंद्र बाबू के विचार की प्रासंगिक होना या उसका इम्पोर्टेंस अभी बढ़ जाना इसीलिए और अधिक हमको दिखाई पड़ रहा है क्योंकि इस दिशा में कोई ठोस कार्रवाई न सरकार के द्वारा हो रही है और न ठोस कार्रवाई के लिए कोई प्रेशर ग्रुप, सोशल प्रेशर ग्रुप अभी इंडिया में दिखाई पड़ रहा है। पॉलिटिकल पार्टीज भी अपने उनके विचार में या उनके एजेंडा में ये बहुत लो प्रायोरिटी में रहता है। इनकम इक्वालिटी की बात प्राय नहीं ही रहती है। लेफ्ट पार्टीज कभी इनकी बात करते हैं, वो लोग पार्टी वाले करते हैं, लेकिन अब अदर पार्टीज को अगर देखा जाए तो वो जितनी पॉलिटिकल पार्टीज हैं डेमोक्रेसी में वो इम्पोर्टेंट होती हैं और वो पॉलिटिकल पार्टीज इनको अपने एजेंडा में बहुत नीचे रखे हुए। तो इनकम इनइक्वालिटी की बात आई तो ऑक्सफैम का रिपोर्ट मेरे सामने है जो आप लोग भी देखे होंगे, और ये प्रोफेसर हिमांशु जी हैं जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी से, उन्होंने भी अपने एक लेख में इसको कोट किया है। तो सबसे पहले कि 1% जो इंडिया का 1% पॉपुलेशन है, वो 1% पॉपुलेशन बहुत अधिक इंडिया के वेल्थ को कैप्चर कर रहा है। टॉप 10% के बारे में है कि 77% ऑफ द टोटल नेशनल वेल्थ इज ओन्ड बाई टॉप 10% ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन। अब देखा जाए, माने 77% को कंट्रोल कर रहा है वेल्थ का 10% इंडियन पॉपुलेशन। आगे बढ़िए तो आगे बढ़ने में है कि 119 अरबपति बिलियनरायर्स हैं, तो बिलियंस वाले हैं, तो ये माने खरबपति ही कहा जाए, अरबपति तो हैं ही। इनकी संख्या अपने देश में बड़ी तेजी से बढ़ती जा रही है। रूरल डेवलपमेंट सेक्रेटरी और 2018 और 2022 के बीच में, अभी 2023 चल रहा, फिगर नहीं आया है, लेकिन 2018 और 2022 के बीच में इंडिया में 70 नए जो इस तरह के अरबपति हैं रोज पैदा हो रहे हैं, एवरी डे पैदा हो रहे हैं। तो यह ऐसी स्थिति में आगे का एक फिगर और है जो आई ओपनर है कि पिछले एक दशक में जो अरबपति हैं उनके फॉर्चून्स लगभग 10 गुना बढ़ गए हैं। 10 साल में 10 गुना उनके वेल्थ बढ़ गए हैं। तो ये, और सबसे अंत में एक और पॉइंट है कि अभी जो एवरेज मिनिमम वेज वर्कर है अपने देश में, जो मिनिमम वेज तो गवर्नमेंट ही तय करती है, तो मिनिमम वेज जो न्यूनतम मजदूरी है और न्यूनतम मजदूरी पर जो वर्कर काम कर रहा है अपने देश में, अगर उसकी तुलना करें कि जो टॉप एग्जीक्यूटिव किसी बड़ी कंपनी में, गारमेंट कंपनी का यहाँ उदाहरण दिया गया है कि गारमेंट कंपनी में, टेक्सटाइल कंपनी में अगर हैं तो उनमें कितनी डिस्पैरिटी है। उनमें डिस्पैरिटी इतनी है कि 941 साल, माने लगभग 1000 वर्ष लगेगा न्यूनतम वेज अर्नर को उस लेवल पर पहुंचने में। लेकिन उस लेवल पर पहुंचेंगे जब तक वो, तो जिनको हाईली पेड है, टॉप पेड एग्जीक्यूटिव हैं इंडियन गारमेंट कंपनी में, इंडस्ट्री में, वे तब तक कहां से कहां चले जाएंगे। कहने का मतलब ये है कि अपने देश में इनकम इनइक्वालिटी की जो समस्या है ये 1989 से ही बढ़ती जा रही है, गंभीर होती जा रही है, और गंभीर होते हो उसका समाधान कहीं दिखाई नहीं पड़ रहा है।
समाधान समाजवादी तरीके से ही निकल सकता है। भूपेंद्र बाबू जीवित रहते तो अभी तहलका मचा देते, इसके लिए क्या से क्या हो गया रहता। लेकिन अभी लग रहा है कि हम लोग सब के सब इस रंग में रंग गए हैं कि एलपीजी की जो लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन की जो प्रक्रिया है, जो जिसका समय आ गया है, एलपीजी का समय कहते हैं कि इकोनॉमी में न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी का मतलब एलपीजी। एलपीजी का मतलब लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, मतलब ये तीनों चीज में ही हम लोग उससे इतने प्रभावित हो गए हैं कि उसी में से देश चल रहा है। और इस नाम पर एलपीजी आया कि एलक्यूपी कि लाइसेंस कोटा परमिट का राज खत्म करो, तो राज तो खत्म हुआ, अच्छी बात है। मैं यह नहीं कहता कि वो अच्छी चीज थी, उसको रखा जाए। मेरा यह कहना है कि इतना अधिक फ्रीडम नहीं दे दिया जाए। फ्री इकोनॉमी तो है, हो ही गया। जब एलपीजी हो गया, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन उसी में बह रहे हैं और उसी को बढ़ाते जा रहे हैं, तो हम लोग फ्री इकोनॉमी में तो आ गए। कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी कहें ना कहें, डेमोक्रेटिक सोशलिस्टिक पैटर्न ऑफ सोसाइटी। हम लोग पंचवर्षीय योजना में पढ़ते थे, प्रथम पंचवर्षीय योजना, द्वितीय पंचवर्षीय योजना, पंचवर्षीय योजना भी खत्म हो गई, अब योजना वैसी होती ही नहीं है। प्लानिंग कमीशन ही खत्म हो गया, उसका नाम दूसरा दे दिया गया है। कहने का मतलब ये है कि ये जो बातें आई, तो ये सब चीजें अब वो पुरानी बातें हो गई। अब लगता है कि फ्री इकोनॉमी में ही चलना है। फ्री इकोनॉमी में चलना है तो फ्री इकोनॉमी में इनइक्वालिटी जो हो रही है, इनकम की बढ़ती जा रही है, उसको कैसे खत्म किया जाए, इसका कोई समाधान नहीं दिखाई पड़ता। हम लोग पढ़ते थे, पढ़ाते थे, पटना विश्वविद्यालय में कुछ दिन लेक्चरर रहने का भी मौका मिला था इकोनॉमिक्स में, तो मल्टीप्लायर इफेक्ट पढ़ाते थे और कहते थे कि पूंजीवादी व्यवस्था में सरकार प्राइवेट उद्योगपति पर देश के विकास को छोड़ देती है, यह समझ करके कि जो उनके द्वारा उत्पादन होगा उससे एम्प्लॉयमेंट होगा, एम्प्लॉयमेंट के बाद उनको वेजेज मिलेंगे, जो इनकम होगा, और वो धीरे धीरे करके मल्टीप्लायर इफेक्ट से कई गुना एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, गरीबी दूर होगी और धीरे धीरे देश की गरीबी दूर हो करके गरीब और अमीर के बीच की खाई भी दूर होगी। वो मल्टीप्लायर इफेक्ट एक्चुअली इंडियन इकोनॉमी में काम नहीं करता है। किसी देश में अच्छा से काम नहीं किया, लेकिन मल्टीप्लायर इफेक्ट कर सकता है गरीबी और अमीरी के बीच की खाई को मल्टीप्लाई करने में, लेकिन पाटने में, उसको ब्रिज अप करने में वह काम नहीं कर रहा है। तो अब ये बातें प्रासंगिक इसलिए भी हैं कि इनकम इनइक्वालिटी का होना या बढ़ते जाना देश के स्वास्थ्य के लिए, देश के सोशल सामाजिक स्वास्थ्य के लिए, राजनीतिक स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं है। ठीक इसलिए नहीं है, इससे असंतोष बढ़ता है देश में, इससे अशांति बढ़ती है, इससे उग्रवादी प्रवृत्ति को बल मिलता है। हम और आप कभी नहीं चाहेंगे कि देश में उग्रवादी प्रवृत्ति को बल मिले, और अगर नहीं चाहते हैं कि बल मिले तो हमें आपको देश में जो पॉलिसी मेकर्स हैं, प्लानिंग कमीशन खत्म हो गया तब भी जो पॉलिसी मेकर्स हैं उनको पॉलिसी बनानी होगी। पॉलिटिकल पार्टीज के एजेंडा में इसको लाना होगा कि देश में जो असमानता, इनकम की असमानता, आय की असमानता बढ़ती जा रही है, उस असमानता को कैसे दूर करें। तो इसी के साथ साथ जब मौका मिला है और अगर आप परमिट करेंगे तो एक दो पॉइंट और मैं बता दूं कि दूसरा एस्पेक्ट है अनएम्प्लॉयमेंट का। यह उम्मीद की जाती थी कि इंडिया में जब विकास होगा तो विकास के साथ साथ, डेवलपमेंट के साथ साथ एम्प्लॉयमेंट ऑटोमेटिकली बढ़ेगा। देखा जाए, ये एक एजम्पशन इसमें रहता है, एक मान्यता रहती है
कि अगर टेक्नोलॉजी, लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी अगर वही रहे, अदर थिंग्स बीइंग द सेम, ये बराबर इकोनॉमिक्स में एक आता है कि अन्य चीजों के सामान्य रहने पर ये नियम लागू होगा। तो यहां भी कि अगर डेवलपमेंट के साथ साथ एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा या होता, लेकिन टेक्नोलॉजी बदल जाए या पैटर्न ऑफ प्रोडक्शन बदल जाए देश में, तो प्रोडक्शन बढ़ भी जाएगा, एम्प्लॉयमेंट नहीं बढ़ेगा। इसीलिए नेशनल सैंपल सर्वे का ही एक फिगर हमने रखा है कि मौका मिलेगा तो आपको बताएंगे कि उनके अनुसार 1980-81 से लेकर 1990-91 के बीच में जीडीपी का ग्रोथ हुआ 8.7%। जीडीपी, अपने देश का जीडीपी बढ़ा 8.7%, माने लगभग 9%, लेकिन 9% पर ईयर, प्रति वर्ष। उसी पीरियड का एम्प्लॉयमेंट का ग्रोथ रेट है 0.53, मान आधा %। अब देखा जाए करीब करीब 9% प्रति वर्ष जीडीपी का ग्रोथ, देश के इनकम का ग्रोथ, और एम्प्लॉयमेंट का ग्रोथ आधा %, लेस देन 1, आधा, एक का आधा। इसको कई लोगों ने इस पर आर्टिकल लिखा, जॉबलेस ग्रोथ इन इंडिया, जॉबलेस इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन इंडिया। अब जॉबलेस, ये जॉबलेस वाली बात जो है, अनएम्प्लॉयमेंट वाली बात, ये गंभीर बात है। आदमी का माथा बहुत तरह का विचार उत्पन्न करते रहता है। आदमी अगर पढ़ लिख करके इंजीनियर बना, डॉक्टर बना, बीकॉम किया, एमकॉम किया और प्रोफेशनल डिग्री लिया, और डिग्री लेने के बाद भी मार्केट में आ गया जॉब खोजने के लिए और जॉब नहीं मिल रहा है, कोई नहीं ज्वाइन, तो उनके मन में पुनः वही असंतोष पैदा होगा, और असंतोष पैदा होने से खुराफात होता है। और देश के स्वास्थ्य के लिए, जैसा मैंने पहले भी कहा, कि देश के पॉलिटिकल, राजनीतिक या सामाजिक स्वास्थ्य के लिए वो अच्छा नहीं है। इसीलिए इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखा जाए। और एनएसएसओ रिपोर्ट, एक रिपोर्ट, लेटेस्ट रिपोर्ट है, उस रिपोर्ट में इन्होंने बताया है कि 1917-18 में अनएम्प्लॉयमेंट रेट इंडिया में 40 साल में सबसे हाईएस्ट था। हो सकता है कि पेंडेमिक के कारण भी कुछ हो, लेकिन दूसरे कारण भी है। दूसरा कारण यही है कि हमारे देश में जीडीपी तो बढ़ रहा है, लेकिन उस अनुपात में एम्प्लॉयमेंट नहीं बढ़ रहा है, और इसके लिए कोई कुछ कर भी नहीं रहा है, क्योंकि प्राइवेट हैंड में सब कुछ है। उद्योगपति जो चाहेंगे करेंगे, जैसी टेक्नोलॉजी उनको एम्प्लॉय करना होगा, जैसे उनका प्रॉफिट बढ़ेगा वो करेंगे। इसीलिए किसी पर कोई दबाव भी नहीं। सबसे बड़ी बात तो यह हो गई, ये फ्री इकोनॉमिक सिस्टम में, जिसमें हमने कहा एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन में एक और बात आई कि लेबर लॉज को रिलैक्स करो। तो जो लेबर लॉज पहले थे 1989 के पहले, 1989 के बाद धीरे धीरे लेबर लॉज को, रेगुलेशंस को कमजोर किया गया, कई तरह के उसमें बदलाव किए गए, जो कि हमारे देश के उद्योगपति को सूट करता है। सरकारी नौकरी में भी, सरकारी नौकरी अब कम मिलती है, अधिकतर जॉब कॉन्ट्रैक्ट जॉब हो गया, जिसमें कि पैसे कम देने पड़ते। तो लेबर लॉज में रेगुलेशंस को रिलैक्स करने के कारण भी हम समझते हैं कि यह एक फैक्टर बना है, जिसके कारण कि जीडीपी के बढ़ने के, तेजी से बढ़ने के बावजूद भी एम्प्लॉयमेंट हमारे देश में तेजी से नहीं बढ़ रहा। एक फिगर है, सरकारी फिगर ही है, कि इंडियन लेबर फोर्स अभी जिस तरह से बढ़ रहा है, लगभग 80 लाख जो यूथ हैं मार्केट में
हर साल आ रहे हैं नए नए आदमी 80 लाख जॉब खोजने के लिए, और हमारे यहाँ फुल टाइम जॉब एकदम उतना क्या, उसका 1/4 भी पैदा नहीं हो रहा है। इसीलिए अगर तेजी से इस पर नहीं काम किया गया, हो सकता है कि जॉबलेस की संख्या तेजी से अपने देश में बढ़ने लगेगी। और ये पेंडेमिक के कारण, कभी कभी लोग कहते हैं कि पेंडेमिक के असर के कारण है, अभी भी उसका असर है। तो हो सकता है कि हमारे पॉलिसी मेकर्स लेकिन इस पर ध्यान रखें कि कम से कम जितना अनएम्प्लॉयमेंट रेट अभी इंडिया में है, अगर उसी को मेंटेन करना है या उसको घटाना है, तो जितने नए लोग लेबर मार्केट में इंडिया में आ रहे हैं, हमारे यूथ आ रहे हैं पढ़ लिख करके, ट्रेनिंग ले करके, इंजीनियर डॉक्टर बन करके, कम से कम उससे अधिक डिमांड क्रिएट होना चाहिए। और डिमांड क्रिएट होने के लिए इंडस्ट्री सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर, ये सबको मिलकर के काम करना होगा, नहीं तो असंतोष पैदा होगा। मैं समझता हूं कि मोटा मोटी मैंने पॉइंट्स को रख दिया है कि क्यों श्री भूपेंद्र नारायण मंडल, हमारे महान समाजवादी महामानव के विचार अभी भी बहुत अधिक प्रासंगिक हैं। रादर मैंने कहा कि पहले से अधिक प्रासंगिक हैं, क्योंकि अगर उनके विचारों के, ये नहीं उनका नाम आए या ना आए, उनके विचार पर अगर काम नहीं किया गया तो ये फ्री इकोनॉमी जो इंडिया में चल रही है, ये आज न कल इसको लेकर उग्रवादी तत्व सजग हो सकते हैं और हमारे देश में शांति व्यवस्था में, क्योंकि मैं कई जिले का जिलाधिकारी था, मैंने देखा कि इन मुद्दों के कारण भी, गरीबी और अमीरी के बीच के खाई के कारण भी समाज में तनाव रहता है। और सामाजिक तनाव में छोटी छोटी बात के कारण भी बात बहुत बढ़ जाती है, और बढ़ जाती है तो अशांति होती है, मॉब को कंट्रोल करना पड़ता है, फायरिंग करानी पड़ती है, बात बढ़ जाती। कहने का मतलब ये है कि अगर ठीक से विकास करना है, देश का डेवलपमेंट करना है, तो देश में सामाजिक शांति, राजनीतिक शांति वगैरह भी जरूरी है। और इसके लिए जो इनकम इनइक्वालिटी अभी है देश में, कम से कम इसको बढ़ने नहीं दिया जाए। जो बेरोजगारी की समस्या अभी है, इससे बढ़े नहीं, इससे घटे। और घटाने के लिए जितने जॉब्स माने सप्लाई आ रहा है, जॉबलेस जितने जॉब्स खोजने के लिए मार्केट में लोग आ रहे हैं, उससे अधिक जॉब हमको क्रिएट करके हर साल देना होगा। नहीं तो ये लोग, हमारा कर्तव्य भी है, हमारा कर्तव्य है, ये मांगे ना मांगे और समस्या हो या नहीं हो, उनके कम से कम उपयोग करने के लिए ही हमें उनके लिए डिमांड क्रिएट करना होगा, डिमांड के लायक एटमॉस्फेयर बनाना होगा, इकोनॉमिक एक्टिविटीज बनानी होगी, और तभी देश अच्छे ढंग से आगे बढ़ सकेगा। मैं इन्हीं शब्दों के साथ इन पॉइंट्स पर डिस्कशन के लिए आपको आमंत्रित करता हूं, और जहां जरूरत हुई मुझे क्लैरिफिकेशन करने की या देने की, तो मैं अपना क्लैरिफिकेशन भी वहां दूंगा, क्योंकि मेरे पास फिगर्स बहुत अधिक हैं लेकिन समय कम रहता है। तो और ऐसे लैंग्वेज में ही बात करनी है जो लोग सब समझ जाएं, ऐसे मल्टीप्लायर वगैरह पर, इसीलिए एक्सेलरेटर और मल्टीप्लायर वगैरह पर, फैक्टर पर हमने अधिक जोर नहीं दिया, क्योंकि इसमें सोशल साइंस में आप हैं तो इकोनॉमिक्स के भी होंगे, सोशियोलॉजी के भी होंगे, रिसर्चर्स होंगे, स्टूडेंट्स होंगे। तो इसको डिटेल में अगर जरूरत हुई तो उसको मैं डिस्कस करूंगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ आप सबों को धन्यवाद। जय हिंद। रिक्वेस्ट है आपसे कि आप वीरेंद्र सर के लेक्चर के बाद तक बने रहिए, क्योंकि कुछ लोग डिस्कस करना चाहते हैं और हम लोग एंड में लेंगे क्वेश्चन आंसर। सर जरूर, हम बने रहेंगे। यस सर, मेरी इच्छा है आप लोगों को सुनने की भी, ऐसा नहीं कि मैं अपनी बात कहकर मैं चला जाऊंगा। मैं चाहता हूं वीरेंद्र बाबू को भी सुनूंगा। वीरेंद्र बाबू को प्रणाम भी मैंने किया था, लगता है कि उन्होंने सुना नहीं था उस समय, तो वीरेंद्र बाबू को प्रणाम भी, और उनको नहीं, आप सबों को सुनूंगा। जब खत्म आप करेंगे इस सेमिनार को तभी मैं जाऊंगा। बाबू को मेरा प्रणाम। मैं अजीत बोल रहा हूँ मंगलोर से। अजय प्रणाम अजीत बाबू। हाँ सर, थोड़ा मैं लेट ज्वाइन किया, 5:30 में ऑफिस से आते आते हो गया,
अच्छा, वो अच्छा, आपका जी, जी। जितना भी सुना बहुत अच्छा लगा मुझे, और वर्तमान परिवेश में ये बहुत जरूरी चीज था आपने जिसको कवर जी, किया है। गिरीश तो जी, जी जी, आगे भी हम बने रहेंगे। ठीक है सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत ही थैंक यू। अच्छी प्रस्तुति रही। इतने सरल तरीके से आपने हमको समझाया। इवन मैं एक साहित्य का विद्यार्थी हूँ, फिर भी इतने सरल शब्दों में अर्थव्यवस्था को किस तरह से समाजवादी तरीके से लागू किया जाए जिससे रोजगार सृजित हो। और आपने संविधान से बात शुरू की, वो भी हमारे संविधान की आत्मा से, जो कहता है कि भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष, समाजवाद हमारे संविधान की आत्मा में है। और उसके बाद सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात कही गई है। तो मुझे लगता है कि जो आर्थिक असमानता बढ़ रही है, ऐसे में बी एन मंडल और लोहिया जैसे विचारकों के विचार और प्रासंगिक हो जाते हैं जब एक अर्थव्यवस्था में अमीरी गरीबी की खाई बढ़ती जा रही है। अपने वक्तव्य के दौरान पैंडेमिक की बात आपने की, तो उसी पैंडेमिक में जॉबलेस ग्रोथ के चलते हमारे यहाँ अमीरों की संख्या बढ़ी है लेकिन रोजगार नहीं बढ़ा है। तो ये जो जॉबलेस ग्रोथ और सेंट्रलाइजेशन की जो नीति है, तो इस परिवेश में समाजवाद जरूरी है। और मुझे लगता है कि जब तक इस देश में संविधान है, इस संविधान की आत्मा है, ये देश संविधान से चल रहा है, तब तक बी एन मंडल जैसे विचारकों की प्रासंगिकता रहेगी और रहनी चाहिए। आपने बहुत अच्छे से समझाया। मैं एक बार फिर से धन्यवाद देना चाहता हूँ। मेरे मित्र और सह संचालक अभिषेक पांडे जी जुड़े हैं, थोड़ा देरी से जुड़ पाए थे, तो मैं उनसे आग्रह करना चाहता हूँ कि वो कुछ शब्द बोलें और हमारे अगले अतिथि का परिचय दें और इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। अभिषेक पांडे जी। शुक्रिया धीरेश जी। इसके पहले डॉक्टर गोरेलाल सर ने बहुत ही समृद्ध वक्तव्य दिया। इस सब से हम लोग बहुत समृद्ध हुए। बहुत कम ही लोग जानते हैं कि भूपेंद्र नारायण मंडल जी एक संपन्न परिवार में होते हुए उन्होंने समाजवाद की बात की थी। हम ज्यादातर देखते हैं कि एक सामान्य परिवार से जो लोग ज्यादातर गरीब तबके से आते हैं वह समाजवाद की बात करते हैं, लेकिन एक संपन्न परिवार से जन्मा हुआ व्यक्ति भी अगर समाजवाद के लिए प्रयास करता है तो यह बहुत बड़ी बात होती है। ज्यादा औपचारिक बातें ना करते हुए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं आदरणीय वीरेंद्र कुमार यादव सर को आमंत्रित करना चाहूंगा। इसके पहले मैं सर का एक संक्षिप्त परिचय देना चाहूंगा कि सर भारत सरकार में हिंदी सलाहकार समिति के सदस्य रहे हैं। साथ ही अंतर्राष्ट्रीय हिंदी परिषद के अध्यक्ष पद पर भी सर ने कार्य किया है। इसके साथ ही सर भारतीय राजनीति में अक्सर एक विशेष हस्तक्षेप है सर का। हम लोग सर को चैनलों में कई बार अखबार के लेखों में सुनते पढ़ते रहते हैं और समृद्ध होते रहते हैं। तो सर का बेहद दिल से मैं स्वागत करता हूँ। सर आप आए और अपने वक्तव्य से हम सबों को लाभान्वित करें। वीरेंद्र सर। सभी को नमस्कार। और गोरेलाल को मैंने प्रणाम का जवाब प्रणाम दिया था, सुन नहीं पाए, फिर से मैं प्रणाम करता हूँ। जी 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 वीरेंद्र बाबू जी प्रणाम। और कार्यक्रम की शुरुआत में विकास जी ने समाजवाद उस विचारधारा पर कार्यक्रम रखा है और उन्होंने भाषा के मामले में समाजवाद की धुरी को ही छोड़ दिया है, क्योंकि भाषा और भारतीय भाषा समाजवाद की धुरी में है। वो विषय नहीं है तो उस पर मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन मेरे रहते अगर इस चीज की शुरुआत हुई तो मुझे बोलना आवश्यक समझ में आया। सर क्षमा चाहूंगा सर, मुझे क्षमा की बात नहीं है जी। मुझे देर से याद आया सर। एक्चुअली सर हम लोग कई बार स्कॉलर होते इन्फ्लुएंस में बोल जाते हैं,
मुझे देर से याद क्योंकि आया हम सर। लोग अभी पूना में हूँ और परसों 26 तारीख को एक कार्यक्रम भी था जिसमें मैंने सीडेक के जो प्रौद्योगिकी कार्यक्रम है उनको हिंदी में करवाया, जो तकनीकी कार्यक्रम था, और उसके बारे में भी प्रयास करता रहता हूँ। तो मैं सोचा कि अपने कार्यक्रम में भी अंग्रेजी चल पड़े तो समाजवाद कहाँ जाएगा। बिल्कुल सर, बिल्कुल। अब मैं शुरुआत करता हूँ, क्योंकि गोरेलाल बाबू ने बहुत ही विद्वतापूर्ण से आंकड़े संवैधानिक बातें रखी हैं, तो मैं छोटे छोटे मूल बात करना चाहूंगा कि महानायक भूपेंद्र नारायण मंडल की पुण्यतिथि पर इंडियन रिसर्च स्कॉलर्स एसोसिएशन द्वारा आयोजित विचार गोष्ठी के कार्यक्रम में मुख्य अतिथि डॉक्टर गोरेलाल यादव जी, जो भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी रहे हैं और बिहार सरकार के पूर्व ग्रामीण सचिव भी रहे हैं, अध्यक्षता कर रहे सहायक आचार्य मगध विश्वविद्यालय दीपक प्रसाद जी, उनको मैं देख नहीं पा रहा हूं, वो जुड़े हैं कि नहीं जुड़े, लेकिन दिखाई भी नहीं पड़े एक बार, जो जी राष्ट्रीय अमरकंटक के हैं, संचालक तिवारी सुधारती, सह संचालक अभिषेक पांडे जी, और सर की आवाज कट रही है क्या? वीरेंद्र बाबू आवाज नहीं आ रही है। आवाज आ सर हम आपको सुन नहीं पा रहे हैं सर, शायद नेटवर्क की समस्या है कुछ। पा रहे हैं तो ये कुछ तकनीकी खराबी हो सकती है, लेकिन नेटवर्क भी जुड़ा हुआ है। आ रही है तो बढ़ो आगे जी। जी जी। आज महान समाजवादी नेता और आजादी के योद्धा भूपेंद्र नारायण मंडल जी की पुण्यतिथि है। इस अवसर पर उनको सादर नमन करते हैं एवं विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। इनका जन्म बाबू जय नारायण मंडल और दानवती देवी के घर 1 फरवरी 1904 को हुआ था। उनकी शिक्षा दीक्षा रानीपट्टी, मधेपुरा, मुंगेर, भागलपुर और पटना में संपन्न हुई। 1926 में इनका विवाह राधा देवी के साथ संपन्न हुआ और 1930 में वकालत पेशा के साथ ही इन्होंने अपना सार्वजनिक जीवन की शुरुआत की और महात्मा गांधी के आह्वान पर 1921 में इन्होंने असहयोग आंदोलन में छात्रों का नेतृत्व प्रदान किया और 1940 में मधेपुरा के छात्रों द्वारा चलाया गया छुआछूत मिटाओ आंदोलन में भी इन्होंने मुख्य भूमिका का निर्वहन किया। 13 अगस्त 1942 को मधेपुरा स्थित ट्रेजरी बिल्डिंग पर तिरंगा फहराकर विशाल जन समुदाय को नेतृत्व प्रदान किया और स्वाधीनता प्राप्ति और 1948 में गांधी जी की हत्या के बाद वर्ष 1949 में जब सोशलिस्ट पार्टी का गठन हुआ तो भूपेंद्र बाबू की इसमें महत्वपूर्ण भूमिका रही। 1952 में मधेपुरा विधानसभा के लिए इन्हें उम्मीदवार बनाया गया, लेकिन पार्टी के संगठन के अभाव में ये चुनाव हार गए। इसी क्रम में 1953 में भूपेंद्र बाबू की अगुवाई में टीपी कॉलेज मधेपुरा की स्थापना हुई। इस महाविद्यालय की स्थापना भूपेंद्र बाबू के जीवन की सर्वप्रथम और सर्वश्रेष्ठ जनमुहिम थी। इस महाविद्यालय की स्थापना कालांतर में भूपेंद्र नारायण मंडल विश्वविद्यालय के निर्माण का आधार बना। मधेपुरा जिला मुख्यालय का स्टेडियम का नाम भी इन्हीं के नाम पर रखा गया और 1957 के आम चुनाव में संपूर्ण बिहार में
भूपेंद्र नारायण मंडल एकमात्र सोशलिस्ट पार्टी के विधायक थे। इन्हें अखिल भारतीय सोशलिस्ट पार्टी का अध्यक्ष बनने का भी सौभाग्य मिला। 1962 के लोकसभा चुनाव जब हुआ था तो उन्हें वहां सफलता प्राप्त हुई थी, लेकिन तत्कालीन सरकार द्वारा तिकरम लगाकर चुनाव को ही अयोग्य ठहरा दिया गया। और बड़ी विनती है कि इस महान समाजवादी नेता के चुनावी राजनीति की जो शुरुआत हुई 1952 में पराजय से, और अंत भी जो चुनावी राजनीति का 1964 में हुआ वह भी पराजय से हुई, परंतु उन्होंने लोगों के दिलों पर अंत तक राज किया। लेकिन 1968 में और पुनः 1972 में बड़े ही सम्मान के साथ उन्हें राज्यसभा के लिए चयनित किया गया। स्वतंत्र भारत में 2 बार और स्वतंत्र भारत में 4 अंतिम सर आपकी फिर से आवाज नहीं आ रही है। वीरेंद्र सर आपकी फिर से आवाज नहीं आ रही है। ओके सर लेफ्ट हो गए हैं, अभी रिज्वाइन कर रहे हैं, फिर से भी ज्वाइन करेंगे अभी। हाँ, आवाज आ रही है? जी सर जी सर जी सर जी सर। हाँ, कट गया तो कुछ लगता है वो। ओके सर। हाँ, बोलता हूँ। तो भूपेंद्र बाबू का स्पष्ट मानना था, क्योंकि भूपेंद्र बाबू लोहिया के बेहद करीबी रहे और भूपेंद्र बाबू की रुचि कभी सत्ता समीकरण साधने में नहीं रही, बल्कि सामाजिक न्याय के लिए वो जन आंदोलन खड़ा करने में उनकी दिलचस्पी बराबर रही। उन्होंने भारतीय सामाजिक व्यवस्था पर कड़ा प्रहार किया और वो हिंदू होते हुए भी हिंदू धर्म एवं समाज की मूल्य मान्यताओं के कट्टर विरोधी थे। उन्होंने धर्म को ईश्वर तथा आत्मा के साथ न जोड़कर मानव प्राणियों के कल्याण तथा लौकिक समृद्धि के साथ जोड़ा। वे जाति,
एवं वर्ण व्यवस्था को कैंसर के समान मानते थे, जिसमें कमजोर, दलित एवं महिलाओं के जीवन को नरक बनाए। समाज के कथित उच्च जातियों के लोग एवं निम्न जातियों के लोगों पर अन्याय, अत्याचार एवं शोषण करने से नहीं चूकते। समाज में विद्यमान आर्थिक संसाधन कुछ लोगों के हाथों में केंद्रित हो गए, इससे आर्थिक असमानता को बढ़ावा मिल रहा है। तो वर्ण या जाति के नाम पर शूद्रों के साथ छुआछूत जैसा अमानवीय व्यवहार किया जा रहा है। इनके कारण समाज में विखंडित नजर आ रहा है। तो भूपेंद्र नारायण मंडल ने जाति एवं वर्णवाद के निवारण की पहल की और शूद्रों के उत्थान की आवश्यकता पर बल दिया। भूपेंद्र मंडल एक फिजा थे, साथ ही अनोखी और गर्म फिजा के निर्माता भी थे। वो फिजा कैसी थी? वो फिजा थी संपूर्ण आजादी, समता, संपन्नता, अन्याय के विरुद्ध जिहाद और समाजवाद की फिजा। आज वह फिजा भी नहीं है, भूपेंद्र मंडल भी नहीं है, लेकिन दूसरों के लिए जीने वाला कभी मरता नहीं है। भूपेंद्र मंडल आज भी अपने विचारों में जीवित हैं। लगन, ओजस्विता और उग्रता, प्रखरता को जब तक गुण माना जाएगा, भूपेंद्र के विचार अमर रहेंगे। मूलतः भूपेंद्र मंडल राजनीतिक विचारक, चिंतक और स्वप्नदृष्टा थे, लेकिन उनका चिंतन राजनीतिक तक कभी सीमित नहीं रहा। व्यापक दृष्टिकोण, दूरदर्शिता उनकी चिंतन धारा की विशेषता थी। राजनीति के साथ साथ संस्कृति, दर्शन, साहित्य, इतिहास, भाषा आदि के बारे में भी उनके मौलिक विचार थे। और जब मैं विकास जी अंग्रेजी में बोल रहे थे तो मैं उनके संसद के वाद विवाद के भाषा से संबंधित बात को मैं पढ़ा था, उसका मैं स्मरण कर रहा था। क्योंकि मैं भाषा का काम करता रहता हूं और मुझे स्मरण आया, और मैं विश्व हिंदी सम्मेलन समन्वय समिति का सदस्य रहा हूं। मैं देश में हिंदी का प्रचार प्रसार नहीं करने, विदेशों में भी हिंदी का प्रचार प्रसार करने जाता रहता हूं। तो मुझे लगता है कि जो विश्व हिंदी सम्मेलन जैसे पूछे थी कि देश और विदेश में प्रचार करते हैं तो देश में इसकी गति इतनी शिथिल क्यों है, तो हम क्या जवाब देंगे? अगर भारत में हिंदी नहीं होगी तो विश्व में हिंदी कैसे हो सकती है? इसलिए निश्चित रूप से हिंदी को भी की भाषा से आगे बढ़ाकर ज्ञान की भाषा, विज्ञान की भाषा, धर्म की भाषा, शासन की भाषा, न्याय और न्यायालय की भाषा बनाने की आवश्यकता है। तभी हम भारत के आंगन में नवान का उत्सव देखेंगे, हिंदी फलित होते देखेंगे, और निश्चित रूप से इसके लिए भी राष्ट्रीय सोच बनाने की आवश्यकता है और मानसिकता बदलने की आवश्यकता है। और जब मैं बात कर रहा हूं तो इस अवसर पर आह्वान जरूर करना चाहता हूं कि जो भारतवर्ष में जो नागरिक हैं वो कम से कम, चाहे वो विज्ञान के क्षेत्र के हों, चाहे अधिकारी के क्षेत्र के हों, कम से कम राष्ट्रीय प्रतिबद्धता के लिए भूपेंद्र बाबू की पुण्यतिथि के अवसर पर ये संकल्प लें कि कम से कम अपना हस्ताक्षर, जो अधिकृत हस्ताक्षर है, उसको हिंदी या भारतीय भाषा में करेंगे। मैं समझता हूं कि उनको ये सच्ची श्रद्धांजलि होगा, इसलिए ये आह्वान मैं जरूर करना चाहता हूं। मूलतः भूपेंद्र मंडल राजनीतिक विचारक, चिंतक थे ही, और भूपेंद्र बाबू का जो मैं जहां तक जाना, समझा, पढ़ा उनको, वो मनसा, वाचा एवं कर्मणा तीनों में एक थे। उनकी सोच कथनी एवं करनी में समानता थी। वे जो सोचते थे वही बोलते थे और वही करते थे, और यही उनकी सबसे बड़ी शक्ति थी। जुनूनी और हर पल समाज के लिए सोचने वाले भूपेंद्र नारायण मंडल को बिहार का समाज बिल्कुल भूल चुका है। वे महज मधेपुरा के यादवों के बीच
सालाना यादों की खानापूर्ति तक सीमित हो गए हैं। उन्हें न तो बिहार का सवर्ण समाज याद करता है, ना ही पिछड़ा ओबीसी याद करता है, ना ही दलित याद करता है। उनकी भी स्थिति ऐसी हो चुकी है जैसे स्वामी सच्चिदानंद सरस्वती, सच्चिदानंद सिन्हा, भिखारी ठाकुर का है। इन्हें अब केवल इनकी जातियां भूमियार, कायस्थ और हजाम ही याद करती है। इससे बड़ी विडंबना और क्या होगी कि जिन समाज सुधारकों ने धार्मिक, जातीय, लैंगिक और आर्थिक गैर बराबरी के विरुद्ध आजीवन काम किया, उनके योगदान की चर्चा उनकी जाति विशेष तक सीमित हो जाए, मानो कि उनकी जाति के मौरिसी संपत्ति होगी। कम से कम उत्तर भारत में प्रवृत्ति स्पष्ट तौर पर नजर आती है। ये एक ऐसी प्रवृत्ति है जो हिंदी पट्टी के मानसिक दिवालियेपन की ओर इंगित करता है। ये बतलाती है कि नवजागरण की हम चाहे जितनी जुगाली कर लें, लेकिन सच यह है कि महाराष्ट्र की तरह अपने प्रेरणा स्रोतों को उचित सम्मान देने की तहजीब हमने अभी तक नहीं सीखी है। वरना इन सुधारकों को याद करने का ठेका उनकी जाति विशेष को देने की परंपरा यहाँ नहीं होती। तो मैं दो बात जो छूटी है कि आरक्षण एक ज्वलंत मुद्दा है। ये सुधारती हों, हमारे समाज के क्रांतिकारी हों, साधारण व्यक्ति हों, कि जिस प्रकार से आरक्षण को समाप्त किया जा रहा है, बहुत ही गोरेलाल ने जिक्र किया, लेकिन उसको बाकी नियम अधिनियम में गए, लेकिन इसको विस्तारित रूप में नहीं गए कि आरक्षण की शुरुआत 1908 से करा गया। तभी सवर्ण को भी आरक्षण मिला करता था। लेकिन मैं कल जब यरवदा जेल देखने गया मैं पूना में, तो मुझे 1931 का पूना पैक्ट याद है, जहां से आरक्षण का निर्माण हुआ। क्योंकि गांधी अंबेडकर में यही तफरका था कि गांधी जहां स्वतंत्रता की बात कर रहे थे, तो अंबेडकर ने कहा कि मुझे पहले सामाजिक समानता चाहिए, तब स्वतंत्रता चाहिए। उसी पैक्ट पे जो गांधी ने उपवास किया, और काफी लगता है कि 21 दिन का उपवास के बाद जब लगा तो अंबेडकर और गांधी जी में ये पैक्ट हुआ, जो पूना पैक्ट के नाम से जाना जाता है, और आरक्षण की नींव वहीं पड़ी। और आरक्षण जो दिया गया उसकी अभी तक पूरा नहीं किया गया। तो पूरा करने के पहले ही हमने 10% आरक्षण सवर्ण को दिया, जो आरक्षण की मूल भावना को समाप्त करता है। उस पर भी हम लोगों ने कोई विचार नहीं किया। ये ज्वलंत समाजवादी सोच का नहीं, ये भूपेंद्र बाबू के सोच का सम्मान होगा कि अगर हम इसके लिए कुछ आंदोलन करें, कुछ क्रांति करें। वेबिनार तो हम लोग करते रहते हैं, भाषण देते रहते हैं, जब तक हम इसको धरातल के रूप में नहीं लेंगे तो मुझे नहीं लगता कि धीरे धीरे कट जाएगा। अभी मैं कल ही एक अखबार में दे रहा था कि विद्यालय और महाविद्यालयों में भी जो आरक्षण है उसको समाप्त कर दिया गया है। पता नहीं भी उसका तहकीकात में विस्तार रूप से नहीं किया हूं, लेकिन उसी तरह का समाचार मिला है। तो जो आरक्षण का हमें बढ़ाने का और हमें कतरने का जो काम किया जा रहा है, उसको अगर हम समूल रूप से न समझेंगे, उस पर विचार न करेंगे, तो संगोष्ठी में एक क्रियान्वयन रूप का, एक धरातल रूप का एक प्रारूप भी तैयार होना चाहिए कि हमने वेबिनार किया, भाषण किया और उस भाषण को काम करके खत्म कर दिया, तो ये एक बात नहीं होती है। और चूंकि मैं एक आध बात करके बात को समाप्त करूंगा, क्योंकि और भी लोग वक्ता बोलेंगे और गोरेलाल लोग जवाब भी देंगे, और गोरेलाल ने विस्तृत रूप से काफी चर्चा की है, इसलिए उस चीज को छूने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि राजनीति में तो सब तरह की कलाबाजियां खानी पड़ती है। राजनीति क्षेत्र में कोई साधुता बरतना चाहे तो उसे सुनना पड़ता है, ये राजनीति है, आश्रम का चलाना नहीं। या तो सब तरह की पेतरीबाजियां करनी पड़ेगी। देश में संगठन बना रहे, संगठन में अपना गुट प्रभावी हो, अपने गुट में मेरा ही स्थान महत्वपूर्ण हो, इस निमित्त कई प्रकार के पापड़ बेलने पड़ते हैं। अच्छा बुरा सभी कुछ देखना सुनना सहना पड़ता है। प्रथम तो राजनीति में आते ही कई गलत लोग हैं,
और जो अच्छे भी होते हैं वो राजनीति में आकर प्रवाह पतित हो जाते हैं, जीवन में पवित्रता की उद्धता को छोड़ बैठते हैं। किंतु भूपेंद्र बाबू किसी और मिट्टी के बने थे। उन्होंने राजनीति में भी साधुता की प्रतिष्ठा का संकल्प ही नहीं लिया, बल्कि साधुता से राजनीति चलाई जा सकती है, ये अपने जीवन के द्वारा सिद्ध भी कर दिया। ऐसे महामानव को की पुण्यतिथि पर उनकी स्मृति को प्रणाम करता हूं और पुनः सादर नमन करता हूं और इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद और सभी को नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपने बहुत ही आसान तरीके से बीएन मंडल जी के सामाजिक विचारों, समाज में जो सामाजिक असमानता फैली थी उसके लिए उनके द्वारा किए गए योगदान को बहुत ही बेहतर तरीके से समझाया। और पहले वक्तव्य में डॉक्टर गोरेलाल सर ने जहां पर आर्थिक असमानता के विभिन्न पक्षों पर बहुत गहन चर्चा की, वही आपने बीएन मंडल जी के जीवन के पक्षों से जुड़े, उनके निजी जीवन और जो आंदोलनों में वो सक्रिय रहे और जो मुख्यतः उन्होंने सामाजिक असमानता के लिए, सामाजिक असमानता की खाई को पाटने के लिए जो प्रयास किए और जो उन्होंने कार्य किया, आपने उस पर बहुत ही महत्वपूर्ण चर्चा की। हम सभी आभारी हैं जो हमें आपको सुनने का अवसर प्राप्त हुआ। मैं सहृदय धन्यवाद देना चाहता हूं। तो विकास जी, दीपक सर जुड़े हैं क्या? हाँ, दीपक सर वो नहीं जुड़ पा रहे हैं, नेटवर्क इशू है उनके यहाँ, प्रयास कर रहे हैं बार बार। तो ऐसा करिए दिवेश जी, पार्टिसिपेंट्स के क्वेश्चन ले लेते हैं हम, जो भी क्वेश्चंस हैं, और फिर जो हम लोगों को भी डाउट्स हैं और जो और कुछ थोड़ा सा पूछ सकते हैं, सीख सकते हैं, तो हम लोग भी पूछेंगे फिर। तो आप सेशन को ओपन कीजिए और क्वेश्चंस इनवाइट कीजिए। ठीक है। तो दोनों अतिथियों को धन्यवाद देते हुए मैं ये कहना चाहता हूं कि जो भी हमारे प्रतिभागी साथी इस कार्यक्रम में जुड़े रहे और जो उनके संदेह है या प्रश्न है तो वो आमंत्रित हैं और वो अपने प्रश्न कर सकते हैं। इसके लिए मैं आप सभी को आमंत्रित करता हूं। आप एक एक करके अपना नाम बताते हुए और किस वक्त से आप पूछ रहे हैं ये बताते हुए आप सवाल पूछिए। कितने लोग जुड़े हैं? नमस्ते सर। जी राघवेंद्र भाई, आप सबको नमस्ते। मेरा सवाल मैं राघवेंद्र हूँ, पीएचडी स्कॉलर इकोनॉमिक्स, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात। वीरेंद्र से मेरा सवाल है, वो जब अपनी बात शुरू कर रहे थे उस समय एक राघवेंद्र जी परिचय दे देते तो ज्यादा अच्छा होता। मैं अभी दिया हूँ सर। मैं राघवेंद्र यादव हूँ, पीएचडी स्कॉलर इकोनॉमिक्स, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात गांधीनगर। मैं उत्तर प्रदेश के इंडस्ट्रियलाइजेशन के ऊपर काम कर रहा हूँ अपने पीएचडी के लिए। मेरा सवाल वीरेंद्र सर से है और जो एक महत्वपूर्ण बात को हाईलाइट करके शुरू किए हैं सर कि जो हम अपने प्रोग्राम कर रहे हैं और उस प्रोग्राम को भी अगर अंग्रेजी में करेंगे तो समाजवाद का क्या होगा। एक बड़ी चिंता है और वैश्विक चिंता है। मैं एक चीज ऐड करना चाहता था कि जो समाजवाद को पढ़ा जाता है, लिखा जाता है एज ए थियरी, एज ए प्रैक्टिस इन एकेडमिया, वो आवाज आपकी कट रही है, स्पष्ट बात करते कट रही है आवाज। अभी स्पष्ट हो रही है सर? हाँ, हो रही है जी सर। मैं ये कह रहा था कि जो आप एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु के ऊपर हाईलाइट किए हैं शुरुआती दौर में ही, कि जो हम अपने कार्यक्रम कर रहे हैं उसको भी अगर अंग्रेजी में करेंगे तो समाजवाद का क्या होगा। ये एक बड़ी चिंता है और एक राष्ट्रीय चिंता है। आप सुन पा रहे हैं सर मुझे क्लियर? प्रश्न क्या है? प्रश्न पूछें, प्रश्न क्या है आपका? जी हाँ, मेरा एक पॉइंट ऐड करना था, ये कि
जो समाजवाद है वो इंडियन एकेडमिया में या फिर इंटरनेशनल एकेडमिया में पढ़ा लिखा जाता है, वो हिंदी से क्या कहीं बोले, ज्यादा इंडियन? अंग्रेजी में पढ़ा जाता है, हिंदी से ज्यादा कहीं अंग्रेजी देखिए, में सोशलिज्म को अंग्रेजी में पढ़ा जाने का कारण है। मेरा पूरा पॉइंट सर, मेरा पूरा पॉइंट खत्म नहीं हुआ, थोड़ा सा हाँ मैं बोलिए, लेकिन आवाज आपका कट रहा है ना, बात वाला बात धीरे हो जाता है। तो मतलब कि जिन चीजों पे आप बात कर रहे हैं कि इसका मतलब कि समाजवाद से क्या होगा अगर हम हिंदी में चीजें नहीं करेंगे, तो मेरा ख्याल था कि जो आपका कंसर्न है वो स्वराज से है। स्वराज को हम ले सकते हैं कि अपने राज्य की जो लैंग्वेज है हमें उसको फोकस करना चाहिए। समाजवाद एक ऐसी विचारधारा है जो हर लैंग्वेज के लोग लिखते पढ़ते हैं। तो स्वराज और समाजवाद का दो थोड़ा सा difference। मैं समाजवाद के प्रासंगिकता पे बात नहीं कर रहा था, मैं भूपेंद्र नारायण मंडल के समाजवादी सोच और भाषा के उनके विचार पर बात कर रहा था, और उससे मिलता जुलता मेरा भी विचार है। और दूसरी, समाजवादी पर आप पढ़ें, कोई भाषा खराब नहीं होती है, वो उद्देश्य मेरा नहीं है, लेकिन अपनी भाषा में अगर हम समाजवादी विचार को न रख सकें, तकनीकी विचार को न रख सकें, तो हमारे लिए नहीं, हमारे देश के लिए विडंबनापूर्ण है। उस विचार को इंगित कर रहा था। और चूंकि पढ़ने का माध्यम ये होता है कि सरकार का दृष्टिगत दोष है, क्योंकि सरकार ने अंग्रेजी को हर चीज से जोड़ा हुआ है, शिक्षा से, दीक्षा से, परीक्षा से, नौकरी से, प्रतिष्ठा से, सम्मान से, तो हम अंग्रेजी पढ़ते हैं। लेकिन कुछ लोग, इतना होने के बावजूद, आपको मैं बताना चाहता हूं कि हमारे बिहार के इंद्रदेव प्रसाद अधिवक्ता हैं, सर्वोच्च न्यायालय की भाषा अंग्रेजी है, लेकिन वो संवैधानिक होने के बावजूद भी उसने सर्वोच्च न्यायालय पे ही याचिका दायर करके वहां पर उसने हिंदी में जवाब तलब किया। तो ऐसे चीज को मैं प्रेरित करता हूं कि भाषा आप पढ़ें, लेकिन अपनी भाषा को हम कैसे फैलाव कर सकते हैं। तो समाजवादी मूल में जब सर्वहारा की भाषा ही हम नहीं बोलेंगे, तो हम समाजवाद का फिलॉसफी किसको देंगे, कौन समझेगा। अब हम स्कॉलर हैं तो ये बताने की जरूरत थोड़ी है कि हमें अंग्रेजी आती ही है। आपको एक छोटा सा उदाहरण मैं बताना चाहता हूं कि केंद्रीय हिंदी संस्थान है आगरा में, जो विदेशियों को हिंदी सिखाता है। तो विदेशियों को हिंदी सिखाता, तो एक बार हमको कहीं भेंट हो गया जापानी छात्र से, तो बोला कि सर हम तो यहाँ हिंदी सीखने आए, लेकिन हिंदी के प्रोफेसर से जब मैं हिंदी की बात करता हूँ तो प्रोफेसर कहते हैं कि मुझे अंग्रेजी आती है, तुम मुझसे अंग्रेजी में बोलो। तो ये हमारे मानसिक दिवालियापन को दिखाता है। मैं उसकी ओर इंगित कर रहा हूँ। बताएं। एक प्रश्न करना चाह रहा हूँ जी जी अजीब जी, कर चुके हैं। आवाज आपकी थोड़ा कट के आती है। राघवेंद्र जी आपकी आवाज स्पष्ट नहीं हो पा रही है। था कि जो समाजवाद और स्वराज को अपनी लैंग्वेज में उन चीजों, तो हम स्वराज को किसी का टेलीफोन बज रहा है, बहुत सारे सभी लोग माइक खोला हुआ है। माइक बंद कर दे तो शायद उनका आवाज आएगा। सभी लोग जो नहीं बोलने वाले माइक बंद कर दे तो शायद उनका आवाज आएगा अच्छी से। जी जी सर, बंद कर दिया सर, बंद कर दिया गया है सर, बंद कर दिया जी। नहीं, वो अपना ही माइक बंद कर दिए। राघवेंद्र जी का माइक बंद हो गए। अच्छा, मैंने म्यूट कर राघवेंद्र जी आपको हाँ बोले। मतलब कि जिन चीजों पर फोकस किया उससे स्वराज के सशक्तिकरण की बातें कुछ ज्यादा होगी, और समाजवाद है उसको भी अगर हम हिंदी में हर चीज को हिंदी में करते हैं, ये 15 राघवेंद्र जी, आप यदि स्पष्ट बोल पाते तो सर अच्छा जवाब दे पाते। आपका आवाज नहीं ठीक से आ रहा है और सुनाई, मतलब पूरा प्रश्न नहीं समझा जा रहा है, तो आई थिंक कि क्वेश्चन वो आंसर देने में वो नहीं होगा। तो आप नेटवर्क में तब तक आइए, आपका क्वेश्चन हम नोट किए हैं, आप फिर से पूछ सकेंगे। तब तक धीरेश जी, दूसरे पार्टी जो प्रतिभागी हैं, सॉरी, उनको आप आमंत्रित करिए प्रश्नों के लिए। उनका जो संदेह है या प्रश्न है वो पूछ सकते हैं। मैं थोड़ा सा 1 मिनट, मतलब 1 सेकंड के लिए थोड़ा सा। हाँ, मैं अजीत कुमार मंगलोर से बोल रहा हूँ। तो पहले तो वीरेंद्र बाबू को मेरा प्रणाम। जी प्रणाम।
जी जी, बहुत अच्छा आपका सुनने का मौका मिल रहा है, बहुत कम मिलता है। और मेरा प्रश्न एक्चुअली गोरेलाल बाबू से रहेगा। तो मेरा प्रश्न ये है कि इंडिया के बेस्ट ब्रेन को आईएएस में लिया जाता है, तो फिर भी भारत की स्थिति या राज्यों की स्थिति ऐसी क्यों है? इसमें आईएएस लोग दोषी हैं या नेतागण? प्रश्न थोड़ा कठिन है, लेकिन मैं समझता हूँ कि आप उचित उत्तर दे पाएंगे। सर आपका माइक म्यूट है सर, गोरेलाल सर गोरेलाल बाबू म्यूट है माइक सर ऑन आपका। करिए। जी हेलो, हाँ अब आप मेरी बोलिए सर। आवाज जा रही है? जी सर बताइए। मेरी आवाज जा रही? जी, मैं कहना चाहता हूं कि इसका उत्तर तो बड़ा सीधा है कि देखिए, जो आईएएस ऑफिसर्स होते हैं वे पॉलिसी मेकर्स नहीं होते हैं। संविधान बनना, संविधान के अंदर कानून बनना, कानून के साथ साथ रेगुलेशंस बनना, ये सभी जो पॉलिसी मेकिंग की बात है, ये पॉलिसी मेकिंग आती है लेजिस्लेशन से, लेजिस्लेटिव असेंबली से, पार्लियामेंट से। और मूल जब बातें तय हो जाती हैं कि क्या करना है, उसके बाद इम्प्लीमेंटेशन का जब स्टेज आता है, उसमें इनकी भूमिका अधिक रहती है। पॉलिसी मेकिंग में ये सजेशन का काम तो कर सकते हैं, प्लानिंग कमीशन था, फाइनेंस कमीशन अभी भी है। फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन अभी हाल तक बिहार कैडर के ही आईएएस ऑफिसर श्री एनके सिंह जी थे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी रहे हैं, तो वो थे। कहने का मतलब ये है कि जहां पर एडवाइजरी रोल है तो एडवाइजरी रोल उनका है, लेकिन अगर पॉलिटिकल लेवल पर एक एजेंडा किन्हीं का बना हुआ है कि देश को इस रास्ते पर चलाना है, तो आईएएस ऑफिसर्स एडवाइस ही दे सकते हैं। आईएएस ऑफिसर्स उनके इरादे को बदल नहीं सकते। तो ये कानून बनने की बात है। कानून एडवाइस दे सकते हैं, ये कानून बनना ठीक है, ये कानून बनना ठीक नहीं है। लेकिन अगर हम उतारू हो जाएं, आप या हम या कोई भी देश को चलाने की स्थिति में हो, देश को चलाने की स्थिति क्या, जो सबसे लार्जेस्ट पार्टी होती है प्रजातंत्र में, उनके जो मुखिया होते हैं, जो लीडर होते हैं, वही देश को चलाते हैं, चाहे जो पार्टी हो। पार्टी का नाम नहीं लेना है, लेकिन कभी कांग्रेस पार्टी थी, कभी बीजेपी है, तो पार्टी तो आती है जाती है, लेकिन जो लार्जेस्ट पार्टी के जो लीडर रहते हैं, उनकी भूमिका अहम होती है इन चीजों में कि देश को कैसे चलाना है। बाकी आईएएस ऑफिसर्स वगैरह एग्जीक्यूट करने में उनकी भूमिका अहम है, पॉलिसी में उनका एडवाइजरी रोल है। एडवाइस मानना नहीं मानना आपका मेरा काम है। आपको और हमें भी बहुत तरह के एडवाइस सलाह हमको मिलती रहती है, लेकिन उस सलाह को हम माने ना माने अपने दैनिक जीवन में भी, वो मेरा काम है। इसीलिए मेरा तो यही संक्षेप में उत्तर है कि ये काम बटा हुआ है, अलग अलग है। तीन भाग में, एग्जीक्यूटिव, जुडिशियरी और लेजिस्लेचर, ये अलग अलग विभाग है, अलग अलग काम है। और देश को चलाने के लिए नीति बनाना, अब वो काम अलग महकमा है। मुझे लगता है कि सर आपने उत्तर दिया, तो ब्यूरोक्रेट का तो एक आदत होती है, तो आप साफ साफ उत्तर देंगे नहीं। जहां तक मुझे लग रहा है वीरेंद्र बाबू साथ में पॉलिटिक्स से बहुत जुड़े हुए हैं। यहाँ पे मुझे क्या लग रहा है, इनका जो है बीएन मंडल साहब का, उनका सबसे स्पष्ट था कि एवरीबॉडी शुड बी ऑनेस्ट, सभी लोग को ईमानदार होना है। तो हमें जहां तक समझ में आता है कि ईमानदारी लोगों से चली गई है। अब वीरेंद्र बाबू कुछ इस पे दे सकते हैं अपना वक्तव्य। नहीं, मैं भी इस पे कहना चाहूंगा अजीत बाबू, मेरा भी इसमें सुन लीजिए संक्षेप में उत्तर। सबसे बड़ी बात है कि देखिए, हमारे समाज में सब तरह के लोग हैं, अच्छे बुरे लोग भी हैं, और उसी कुएं के से बाल्टी बाल्टी पानी निकाल रहे हैं। उसी बाल्टी से उसे वही पानी अपने कहने का, उसी कुएं का पानी 10 जगह जाता है। पॉलिटिक्स में भी वहीं से लोग जाते हैं, उसी समाज से लोग आईएएस आईपीएस भी बनते हैं। उसी सभी जाति सभी धर्म के लोग आईएएस आईपीएस में भी हैं, सभी धर्म सभी जाति के लोग पॉलिटिक्स में भी हैं, जुडिशियरी में भी हैं।
कहने का मतलब ये है कि ये एक ऐसी चीज है कि चिंता की बात तो जरूर है कि ईमानदारी होनी चाहिए। सवाल है कि देखा जाए शुरू हो जाती है बात कहां से कि अपने देश के प्रजातंत्र में कहते हुए मुझे संकोच नहीं हो रहा है, हो सकता है मेरी शिकायत भी हो, लेकिन मैं कहना चाहूंगा कि अपने देश में जो राजनीति है, जो प्रजातंत्र जिस तरह का चल रहा है, उस प्रजातंत्र को चलाने के लिए ईमानदारी के पैसे से यह भी नहीं चल रहा। और ईमानदारी के पैसे से ना किसी पॉलिटिकल पार्टी का काम, इतना जो रैली होती है, इतने जो हवाई जहाज उड़ते हैं इलेक्शन के टाइम में, इलेक्शन के टाइम नहीं रहने पर भी इतना जो खर्च होता है, इतना जो चंदा जिसके लिए एक्ट, आप कहिएगा कि अभी आपने कहा कि क्यों नहीं रोका जाता है, आईएएस ऑफिसर इंटेलिजेंट होते हैं, क्यों? नॉर्मली जो इंटेलिजेंट बहुत होते हैं वो ईमानदार भी बहुत होते हैं और कट्टर बहुत होते हैं, कुछ जिद्दी भी होते हैं। लेकिन बात यह है कि जहां बात आ जाती है कि जिनको पॉलिटिक्स में जो है, जिनका पॉलिटिकल पार्टी में कुछ एजेंडा है, कुछ वादा करके देश में आते हैं, वोट लेते हैं और पावर में आते हैं, मैनिफेस्टो में कुछ कुछ लिखा जाता है, हर पार्टी का अपना मैनिफेस्टो रहता है, उस मैनिफेस्टो में लिखा जाता है कि पावर में आएंगे तो हम ये करेंगे। आईएएस ऑफिसर का रोल वहां खत्म हो जाता है, क्योंकि जब जो पार्टी पावर में आएगी तो जो वादा है जी, मैं बस 1 मिनट में खत्म करता हूं, तो उस खत्म करने के लिए नहीं बोल रहा हूं मैं, चूंकि उनका सवाल जो है ना, हाँ वो नटशेल में है कि पॉलिटिशियन ज्यादा बेईमान होते हैं कि ब्यूरोक्रेट। देखिए ये वो विस्तार में उन्हें सुनना चाह रहे हैं। मैं शायद इसका उत्तर इसलिए नहीं दे सकूंगा, मैं अपने बारे में कह सकता हूं, जिनको जानता हूं उनके बारे में। उत्तर दिया नहीं, वो व्यक्तिगत सवाल तो उन्होंने किया नहीं ना, बारे में मेरा कहना नहीं माने, लेकिन मैं ये किसी पॉलिटिशियन के बारे में भी नहीं कह रहा हूं। मेरा ये कहना है कि राजनीति में ये सर्वविदित है कि जब तक पैसा नहीं रहेगा तो राजनीति नहीं चलेगी, और उसमें नाजायज पैसा भी रहता है। चंदा देने की बात हो, पॉलिटिकल पार्टी को चंदा देने पर कहां रोक है? अभी भी है, कितना हजार तक चंदा बिना कोई लिखा पढ़ी के भी दे सकते हैं, बिना चेक का भी दे सकते हैं। लेकिन गोरेलाल, अगर नेता से जो चुनाव लड़ने जाता है, उससे जब जनता कहता है कि ये मंदिर बनवा दो, ये फुटबॉल के लिए पैसा दे दो, इस गांव के विकास के लिए पैसा दे दो, तो दोनों तरफ से बेईमानी शुरू होती है ना। बेईमानी एक ऐसी चीज है, मैंने हम इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में कहेंगे, मुझे बाहर भी रहने का, हम यूके में थे, कॉमनवेल्थ स्कॉलर थे, जापान में थे, यूनिडो फेलो थे, फिजी में कंसल्टेंट थे 4 साल, त्रिभुवन यूनिवर्सिटी काठमांडू में हम पीजी में पढ़ाते थे। सबको देखा अपने देश में क्या है कि ये लेने वाले देने वाले दोनों को फायदा है। जो आप इसीलिए कहा गया कि जो बेईमानी है, बेईमानी या घुसखोरी जो करते हैं, जो देते हैं वो भी उसके लिए दोषी हैं, जो लेते हैं वो भी दोषी हैं। अपने देश में ये गिव एंड टेक का मामला हो गया है, दोनों पार्टी को फायदा है, ले रहे हैं, दे रहे हैं, बाद में बोलते होंगे कि हमने दिया तब हुआ काम, लेकिन करते हैं लोग। ये बहुत दुखद चीज है, ये चिंता की बात जरूर है। दुखद स्थिति ये है कि जो अजीत जी का सवाल है सिर्फ राजनीति और ब्यूरोक्रेट का सवाल नहीं है। हाँ, सब समाज में जिस समाज में एक सेकंड, समाज में जितने भी लोग हैं, अपवाद स्वरूप छोड़ दीजिए, क्योंकि समाज के जितने शिक्षित वर्ग हैं वो उतने ही भ्रष्टाचारी हैं, चाहे वो पॉलिटिकल हो, ब्यूरोक्रेटिकल हो, कर्मचारी हो, अधिकारी हो, इंजीनियर हो, डॉक्टर हो। सिर्फ पॉलिटिकल और ब्यूरोक्रेट पर मामला नहीं है, 1% अच्छे लोग हैं पूरे हिंदुस्तान में या भारतवर्ष में जिस पर ये चल रहा है। क्योंकि हम लोग तो जब पिताजी हमारे सांसद थे, 5-5 जिला के जिलाधिकारियों से वास्ता पड़ता था, तो हम लोग 1 पैसा फंड का नहीं छूते थे, तभी भी कमीशन खोड़ी हो जाती थी। तो इसलिए जो जितने बड़े
शिक्षित वर्ग हैं वो उतने ही भ्रष्ट हैं। अपवाद को छोड़ करके अगर आपका सवाल का जवाब मिल गया हो तो बात को आगे बढ़ाइए। नहीं वो ठीक है, मैंने उन्होंने नहीं, अजीत जी को बोलने दीजिए। अजीत जी ने सवाल किया है, मैंने अजीत जी को बोलने दीजिए ना, अजीत जी को बोलने दीजिए। अजीत जी का सवाल है, उनसे पूछ रहा हूँ मैं। सर सही है मैंने आप दोनों का जो भी रहा है वक्तव्य, तो जैसे गोरेलाल बाबू ने बोला कि समाज जो है, समाज से ही लोग आईएएस बनते हैं, जो भी बनते हैं, तो जहां भी मैं जी तब नहीं, मेरा उसमें एक लाइन जोड़ना है कि जो समाज का शिक्षित वर्ग है वो ज्यादा भ्रष्ट है। हाँ, क्योंकि उनको ही मौका मिल रहा है, बाकी लोग को तो मौका नहीं मिल रहा है ना, बस मौका जहाँ किसी भी क्षेत्र का हो। तो यहाँ जो भी है, जैसे मैं खास करके बिहार और यूपी को जानता हूँ, तो आप बचपन से बच्चे को समझा रहे हैं कि नौकरी ऐसा करो जिसमें कि आमदनी ऊपरी हो। आप बच्चों के दिमाग में ऐसा भर रहे हैं और सोच रहे हैं कि आगे चल के वो ईमानदार बने, तो हो नहीं सकता है, नहीं हो सकता। समाज को बदलने की जरूरत है। तो मुझे लग रहा है सही अपने जो बताया, पूरे समाज को बदलने से पहले हम बदलें। हम पूरे समाज का ठेका ना लें तो जल्दी समाज बदलेगा। हाँ, ये भी सही है। और हमारे मनीष भाई जुड़े हुए हैं मुंगेर से, यादव छात्रावास के महामंत्री, सचिव में महामंत्री हैं। हाँ, तो मनीष कुछ बोलना चाहेंगे? वीरेंद्र बाबू को प्रणाम करें। सर रिक्वेस्ट है सर, कुछ रिसर्च स्कॉलर्स के क्वेश्चंस हैं तो उनको अच्छा, ले लें हम लोग। ले लीजिए। कुछ डिफरेंट जगह से, अन्य जगह से रिसर्च स्कॉलर्स हैं तो कुछ पूछना चाहते हैं कुछ, तो हम उनके व्यूज ले लें फिर इसके बाद में। सर धीरेश, नैना का कुछ प्रश्न था। नैना? हाँ जी विकास जी। आप कुछ पूछना चाहते थे? जी, सबसे पहले तो नमस्कार आप सभी को। मेरा नाम नैना प्रसाद है। मैं महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय की शोधार्थी हूँ। मेरा सवाल, मेरी एक छोटी सी जिज्ञासा है वीरेंद्र सर से कि सर, आरक्षण की बात जो आपने कही, तो ये एक बहुत बड़ा मुद्दा उठता है कि आरक्षण जो है वो आर्थिक रूप से मिलना चाहिए, ना कि जाति के आधार पर मिलना चाहिए। और ये भी सवाल हम अपने समक्ष पाते हैं कि जो गलतियाँ इतिहास में हुई हैं वो आज हमारे बीच जो सवर्णों के साथ क्यों हो रहा है, या हम उसे क्यों झेलें। तो सर, मैं इस पर आपके विचार जानना चाहती हूँ सर कि बहुत ही अच्छा पर हो। पूरे देश आपकी आवाज कास्टलेस सोसाइटी बना दे। जी सर, आवाज आ रही है? आवाज सुन रहे हैं? जी सर जी। बहुत लोगों माइक, कुछ लोगों को खुला माइक कि अगर आप आर्थिक आधार पर आरक्षण देना चाहते हैं तो देश को जाति विहीन बना दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ये नहीं है कि जो सवर्ण है नहीं लेना या कुछ नहीं लेना है। ये तो है कि जो पिछड़ गए हैं उसको बराबरी के दर्जे पे लाना है। तो हम किस प्रकार लाएंगे? तो तभी ला सकते हैं जब उसको कुछ अलग से ये करेंगे। और अगर अलग से नहीं करेंगे, आर्थिक भी दे दिया, अभी जैसे 10% आरक्षण मैंने सवर्ण को भी दिया आर्थिक आधार पर, तो सवर्ण को जब दिया तो एक तो संवैधानिक उल्लंघन हुआ, फिर भी सर्वोच्च न्यायालय ने उसको पारित किया तुरंत पारित किया। और जब बैकवर्ड का, पिछड़े वर्ग का आरक्षण का सवाल था, उसको लेने में लगभग 40 वर्ष लगा। तो ये संवैधानिक पहलू में ईमानदारी और बेईमानी की बात यहाँ भी आती है। अगर आप ईमानदार हैं, अगर पिछड़े को 27% आरक्षण का कोटा पूरा हो गया तो मैं पहला व्यक्ति हूँगा कि आरक्षण को खत्म कर देना चाहिए। जैसे शेड्यूल कास्ट को 7.5% का कोटा पूरा कर दीजिए तो मैं पहला व्यक्ति हूँगा आरक्षण खत्म करना चाहिए। ये नहीं कि हमें सवर्ण से कोई दुश्मनी है, सवर्ण में भी गरीब है, लेकिन प्रतिशत जो अनुपातिक होता है उसका क्या अनुपात है। आप जब देखें सचिव स्तर के अधिकारी को देखें, वहाँ के इसको देखें,
जिलाधिकारी को देखें, राज्यपाल में देखें, मुख्यमंत्री में कुछ बदल रहे हैं, तो पहले मुख्यमंत्री भी 90% वो लोग हुआ करते थे। तो ये एक प्रक्रिया है। ठीक तभी लग सकता है जब समाज को जाति विहीन कर दीजिए। अगर जात रहेगी तो जाति के आधार पर ही आरक्षण होगी। बताएं नैना जी। सर धन्यवाद सर। नहीं बताएं, कोई दिक्कत तो पूछे, क्रॉस करें। नहीं बताएं, कोई दिक्कत तो पूछे। मैं भी सीखता हूँ आप लोगों से। बिल्कुल नहीं सर। मैं भी सीखता हूँ आप लोगों से। जी सर मुझे कुछ ऐड करना है। जी सर, मैं भी सहमत हूँ सर। और एक वही मेरा सवाल था सर कि कुछ सवर्ण कहते हैं कि जो गलतियाँ इतिहास में हुई है आज वो हमारे साथ क्यों हो रही है, या हम उसे क्यों झेलें? नहीं, जो गलतियां इतिहास की बात नहीं करना चाहिए। मैं इतिहास की बात को बताना, मैं तो वर्तमान की बात बता रहा था ना भी। क्योंकि वर्तमान में रामनाथ कोविंद महामहिम राष्ट्रपति मंदिर में नहीं जा सकते। ये वर्तमान का एक इतिहास की बात है। ये बताइए उनको समझाइए। बिल्कुल। जगजीवन राम संपूर्णानंद की मूर्ति का अनावरण करते हैं, उसको दुग्धाभिषेक किया जाता है। ये आज की बात है कि इतिहास की बात है। ऐसे कई उदाहरण हैं। क्योंकि अब सार्वजनिक रूप से नहीं बोल सकते, बहुत सारे उदाहरण मैं जूझता रहता हूँ, मैं लड़ता भी रहता हूँ। मैं तो हिंदी का संघर्ष भी उसी तरह से देखता हूँ जिस तरह से अंग्रेजी वर्गों के पास देश के पूरे संसाधन का उपभोग करने का अधिकार है, उसी तरह जो जनरल लोग हैं उसको अधिकार है उस सत्ता पर, उस कुर्सी पर वो लोग ज्यादा बैठे हुए हैं। उसको ईमानदारी से आज अगर अनुभव करेंगे तो मैं समझता हूँ कि समरसता आएगी। ये समरसता का सवाल है, ये आरक्षण का सवाल, नौकरी का सवाल नहीं है। अभी आरक्षण आपके विद्यालय महाविद्यालय में पहले के पेपर में तो आरक्षण खत्म कर दिया गया, लेकिन वो 10% आरक्षण लागू है सवर्ण को जो दिया गया, उस पर भी विचार करके देखिए। जब पढ़िएगा बताइएगा तभी संघर्ष कर पाइएगा। जी सर बिल्कुल। जी और किसी का कोई प्रश्न है? कोई रिसर्च स्कॉलर्स या स्टूडेंट जो जुड़े हैं प्रश्न पूछना चाहते हैं? हाँ, मैं कुछ ऐड करना चाहता था इसमें। दूसरे वाले सवाल में, पहला वाला तो बाद में देखेंगे अगर समय मिला तो। जी राघवेंद्र जी। आभार सर। मैं इसमें ऐड करना चाहता था जो रिजर्वेशन का इशू है कि जो अफर्मेटिव एक्शन का जो कॉन्सेप्ट है और एक रिजर्वेशन का कॉन्सेप्ट है। रिजर्वेशन जो हिस्सा है वो अफर्मेशन का हिस्सा है। तो जो गरीब सवर्णों की बात आती है वहाँ पर उनको दिया जाना चाहिए, अफर्मेशन दिया जाना चाहिए, रिजर्वेशन नहीं। अफर्मेशन का मतलब ये है कि उनको कई सारी सुविधाएं, जैसे उनको पढ़ने में दिक्कत आ रही है, एडमिशन लेने में दिक्कत आ रही है, तो फाइनेंशियल हेल्प करना चाहिए कि उनको एडमिशन फीस ना लगे, उनको किताब की सुविधाएं दी जाए और कई सारी चीज़ें दी जाए जिसके वो हकदार हैं और वो देना चाहिए। लेकिन जब रिजर्वेशन की बात आती है और उसको हम जब अपने कॉन्स्टिट्यूशन को देखेंगे कि उसका बेस क्या है देने का, तो उसमें जो हमारा मंडल कमीशन बना था और जो उनके मतलब की रिपोर्ट है उसमें भी ये चीज़ें मेंशन है कि जो चीज़ देना चाहिए उसका जो बेस है कि उनका रिप्रेजेंटेशन सोसाइटी में कम होना चाहिए, जबकि जनरल कैटेगरी का रिप्रेजेंटेशन पहले से ओवर है। मतलब कि जो उनका एक परसेंटेज है सोसाइटी में उससे कई गुना ज़्यादा पहले से उनका रिप्रेजेंटेशन है। दूसरा ये है कि सोशल स्टिग्मा होना चाहिए कि जात मतलब कास्ट के नाम पे वो जो है सफ़र किए हैं या प्रीवियस हिस्ट्री हो सफ़र करने की, कि उनके किसी भी रूप में उनको प्रताड़ित किया गया या कुछ ऐसा किया गया जिसकी वजह से वो मेन स्ट्रीम सोसाइटी में नहीं आ पाए। ये जो 3-4 पैरामीटर्स हैं उसको क्वालिफाई नहीं करते हैं, इसलिए उनको कोटा नहीं दिया जाना चाहिए। कोटा का आशय है कि जो 10% या 20% या जो उनका रिप्रेजेंटेशन है उसमें उनकी हिस्सेदारी नहीं होनी चाहिए, या जो रिलैक्सेशन और कंसेशन के नॉर्म्स हैं वो उनको नहीं दिए जाने चाहिए। रिलैक्सेशन का आशय है कि जो मतलब कि मेरिट है कि एक जनरल कट ऑफ है, जनरल कट ऑफ के बाद जो नॉर्म्स 5% 10% समथिंग लेस किए जाते हैं वो उनको नहीं दिया जाना चाहिए। लेकिन कंसेशन जहाँ पे फीस कंसेशन की बात आती है वो किनको नहीं दिया जाना चाहिए, किनको नहीं दिया जाना चाहिए, अपर कास्ट को नहीं दिया जाना चाहिए। ठीक है, ये आपका विचार उनको से मैं सहमत हूँ। कंसेशन है सर, मैं सहमत। सवाल हो गया आपका क्या और है? मेरा पॉइंट सवाल नहीं था।
वही मतलब पॉइंट जो हो वो गया दिया clear। जाना चाहिए सर, वो लास्ट जो बचा है, जो 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 दिया जाना चाहिए, उनको फाइनेंशियल देखिए यहाँ हेल्प किया जाना चाहिए, उनको फ्री में हॉस्टल दिया जाना चाहिए, दो उनसे एडमिशन दो फीस दो लेना नहीं चाहिए, एग्जामिनेशन फीस ये नहीं लेना ये चाहिए, सुनिए, बुक्स अगर के लिए आप ये पैसे देना बात चाहिए। उनके लिए कर रहे हैं तो सवर्ण आपके लिए भी ये सवाल उठा सकते हैं कि आपको भी प्रिविलेज सुविधा ही दिया जाना चाहिए। हाँ, मैं हेलो, उनसे असहमत इस बात पे होऊंगा कि जो रिजर्वेशन देने के पैरामीटर्स हैं पहले से कॉन्स्टिट्यूशन में या मंडल कमीशन रिपोर्ट में मेंशन है कि हमारा प्रीवियस डैमेज है, हमारा जो रिप्रेजेंटेशन है गवर्नमेंट सर्विसेज में वो कम है। अब जब सुन हमारा लीजिए ना, representation पूरा कम है, तो बोलते हमें रहेंगे तो कोटा फिर भी चाहिए। सवाल नहीं हो तो आपका संशोधन सुझाव होता रहेगा। अब सुन लीजिए, दो बात खाली सुन लीजिए। सर, सर। एक तो जो सवाल आप उठा रहे हैं तो वो भी कहेगा कि जो ओबीसी हैं, एससी एसटी को आरक्षण न दिया जाए, उनको भी प्रिविलेज दिया जाए, जैसे आप उसको सुझा रहे हैं, सर तब ये क्या होगा डिस्कोर्स में है, ये भी डिस्कोर्स में है, अभी जो डिस्प्यूट बहस में चल रही नहीं उसमें है। ये। पर सुनिए, दो चीज को समझिए। आरक्षण के प्रावधान को पढ़िए, 15(4), 16(4), ये सब को पढ़िए। उसमें आर्थिक आरक्षण का प्रावधान नहीं है, फिर भी सरकार ने किया। उस पर तो आपने विचार नहीं किया कि आपकी क्या प्रतिक्रिया होनी चाहिए उस पर। नहीं, वो जो हुआ है वो आप गलत हुआ आगे है, जो की कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंडमेंट किए गलत हैं नहीं वो होता सही है, नहीं है। वो गलत नहीं होता है जब चूंकि आपकी प्रतिक्रिया नहीं होती है कोई। अभी कल का मैं जो बार बार जिक्र कर रहा हूं, कल ही आज के मैं वो उस पर देखा हूं कि जो सवर्ण को उस विद्यालय जो अति है वो किसी कुछ कुछ चीज में उसमें आरक्षण है, लेकिन पिछड़ों और अति पिछड़ों का आरक्षण को खत्म कर दिया है। वो कल मैं पढ़ा हूं कहीं पर भी, पूरा विस्तार से नहीं पढ़ा तो लेकिन मैं जान पर इसको सोचिएगा। तो दूसरी बात होती है कि और जो इंडियन ब्यूरोक्रेसी है सर, वो उसके लिए पूरी तरह से जिम्मेदार है। कोई ब्यूरोक्रेसी जिम्मेदार नहीं है। जिम्मेदार अगर हैं तो हमारे नेता जो संसद में हमारे वोट से चुन गए हैं और वहां हाथ उठाने का काम करते हैं, वो पहला जिम्मेदार व्यक्ति है। हाँ, इसको समझना होगा। के लिए जिम्मेदार सर, मैं इम्प्लीमेंटेशन की बात कर रहा हूँ कि आप इम्प्लीमेंट बताए हैं नहीं, इम्प्लीमेंटेशन करने का उसको कौन देखेगा? मतलब प्रैक्टिसेस में बहुत सारे जगह पे आता है कि जो मतलब कि वो ईडब्ल्यूएस है उनको फीस कंसेशन दिया गया है और आपने मैं ये पहले बता रहा हूं कि आपने जिन नेताओं को चुनकर संसद में भेजा, आपके अपने नेता, वो क्या कर रहे हैं वहां? किसी का सवाल जवाब मैं नहीं सुनता हूं इस बात पर। सभी हाँ में हाँ मिलाता है, चाहे किसी पार्टी का हो। बीजेपी की बात नहीं कर रहा, चाहे कांग्रेस का हो, चाहे आरजेडी का हो, चाहे जेडीयू का हो, समाजवादी का हो। किसी एक का रेफरेंस बता दीजिए किस पर किन सांसद ने ये बोला है। जब आप अपने को बात नहीं कर सक रहे हैं तो ब्यूरोक्रेट को कहां से रोकिएगा? ब्यूरोक्रेट तो सरकार की नीति का गैप में डिफरेंस कर दूं, अलग अलग दोनों में गैप है। पहला ये है कि पॉलिसी फार्मुलेशन का है, जहाँ पे हम क्रिएट कर रहे हैं, वहाँ पे हमारी जो मतलब कि विधायिका है वो जिम्मेदार है कि वो कर रही है, और वहाँ पे नेता को बोलना चाहिए वो नहीं कर रहे हैं। वो एक इशू है। दूसरा इशू इम्प्लीमेंटेशन का है कि उन्होंने दे दिया है, पहले से ओबीसी को फीस कंसेशन दे दिया है एज पर द रूल, पहले से उनको कोटा फिक्स कर दिया है एज पर द रूल। लेकिन जो हमारा इंडियन ब्यूरोक्रेसी है, जो इस देश के कंसर्न कमीशन